हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। आप लोगों ने प्रेपोजिशन का टॉपिक कर लिया होगा मेरे चैनल से, वीडियोस से। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर का, वो है आर्टिकल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर दिए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स देख सकें। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। वी ऑल नो दैट वी हैव थ्री थिंग्स इन इंग्लिश। वन इज अल्फ़ाबेट। हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स। There is a way of writing these alphabets. Number one is capital case. यानी कि A, B, C, D till Z. Number two is small case. That is A, B, C, D and till Z. Now we should talk about the consonants. In English 26 alphabets we have consonants. These consonants are 21 in number. Any alphabet apart from A, E, I, O, U is known as consonants. Now we should know what is this A, E, I, O, U if they are not consonants. These A, E, I, O, U are vowels. So in English language we have 5 vowels: A, E, I, O and U. These vowels are known as स्वर। इनको हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर यानी कि आ, ई, ओ, sorry for the pen, ऊ, ए और आई। अब you must be wondering that why we talked about consonants and vowels. We are discussing the topic articles. और अगर आप articles पढ़ने से पहले consonants और vowels को नहीं जानेंगे, then you won't be able to understand the topics of article. So now we'll be starting with the core topic of article. There are 3 types of article: a, an and the articles. These articles are the determinants. In English grammar, we call the articles as the type of determiners. The determiner is used before a noun
and also depicts मतलब बताना, how a noun is being used. Now we should categorize the article. Article is being categorized into two types. One is indefinite article, the other one is definite article. First we are going to talk about indefinite article. There are two types of indefinite article. One is a, other one is an. For example, this is ये क्या है? This is a chair. सीता sang song. What? A song. एक गाना गाया सीता ने. This is umbrella. What? An umbrella. Now we should come up with a note. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, which at times makes you confuse. So put them in the form of notes, or you can also make a use of highlighter to highlight the major points. In a sentence, if the singular countable noun is not clear, अगर किसी वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्लियर नहीं है, उसके हमें काउंटिंग नहीं पता, then we use indefinite article. What do we use? Indefinite article. Indefinite articles कौन से हो सकते हैं? A और an. Before the singular countable noun. Now let's take down some example of this. For example, this is chair. चेयर क्या है? इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. हम चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है. और अभी सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसके आगे एस नहीं लगा. दैट मीन्स देयर इज ओनली वन चेयर. इज इट करेक्ट? नो, इट इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है? हमने अभी बात करी दैट वी हैव टू यूज an indefinite article before the singular countable noun. So इसका जो correct form होगा वो होगा this is a chair. ये एक chair है. This is correct form. Next example. Sita sang song. Is it correct? Song क्या है? सॉन्ग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिर्फ एक है, ठीक है. दूसरी चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे क्या आता है? इनडेफिनिट आर्टिकल. तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा सीता sang a song. सीता ने एक गाना गाया. दिस शुड बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ इट.
नाउ देयर इज अ पॉइंट टू नोट, हमें कहाँ पर ए और एन का यूज करना है। हमने ये तो बात कर ली कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज होगा, but we need to be sure where to use a and where to use an, because this is the biggest confusion. They both are used for the singular countable noun, they both are indefinite articles, but we should be sure that इनको कहाँ use करना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग अपने तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। They both are used before singular countable noun. For example, I have a purse. मेरे पास एक पर्स है। This is an umbrella. ये एक छतरी है, अम्ब्रेला है। राम is a boy. राम एक लड़का है। Now friends, the most important point that हमें an का use, the most important point कि हमें and का यूज कहां पर करना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़े से पॉइंट्स में लिख लेते हैं, क्योंकि इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट्स में या बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी मोर हाईलाइटेड और हमें याद रहेगा वो पॉइंट। तो पहली चीज जो होगी फ्रेंड्स, वो होगा फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में भी यही बोला था कि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस तरीके से एक वर्ड को बोलते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं उसके ग्रामर के रूल्स। कैसे एक वर्ड का, एक शब्द का उच्चारण किया जाता है। इफ द फर्स्ट साउंड, अगर पहली साउंड जो उसमें से निकलेगी, जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन से निकलेगी, वो अगर वॉवल से शुरू होती है, यानी कि अगर वो एक स्वर होती है, then we will be using an, हम an का यूज करेंगे। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। और इफ वील टॉक अबाउट हिंदी, तो हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया है स्वर क्या क्या होते हैं। अ, आ, ई, ए, उ, O. Then we have to use an article. For example, an umbrella. अब अम्ब्रेला तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट हमने एन अम्ब्रेला क्यों लिखा? क्योंकि जब हम अम्ब्रेला को बोल रहे हैं तो पहला जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है अ का, अम्ब्रेला। वी आर नॉट सेइंग यूम्ब्रेला, हम लोग बोल रहे हैं अम्ब्रेला। एन ऑनेस्ट मैन। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में। ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट अ, या हॉनेस्ट नहीं है। अ यूनियन। अब आप कहोगे मैम ये तो यू आ रहा है, तो फिर हम यू के साथ तो हमें
एन लगाना चाहिए, नहीं, हम लोग साउंड के साथ जाएंगे। तो इसमें साउंड क्या आ रही है, यू की आ रही है, य की साउंड आ रही है। अ 1 रुपी नोट, तो इसमें पहली साउंड क्या आ रही है, व की आ रही है, 1 की आ रही है, तो हम लोग इसलिए इसके साथ एन नहीं लगाएंगे, अ लगाएंगे, 1। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का पहला पार्ट आर्टिकल्स का। वी विल बी सून कमिंग अप with the next part of articles. Till then, keep liking, sharing and subscribing my channel. और अगर आपके कोई confusions हैं, कुछ doubts हैं, तो आप please comment में मुझे पूछ सकते हैं। Whenever I'll be free, I'll surely reply back. Till then, take care of yourself. Thank you very much.